heat transfer. Now, many concepts of this chapter you have already studied in different chapters like matter, the concept of evaporation, the concept of heat, how heat transfers, that we have studied in energy. So in bits and pieces, few topics are done here and there, but collectively we will understand how heat transfers, how it affects different objects, how it affects us, how it affects the environment around us in this chapter. Okay. So moreover, if I recall, you already know what is potential energy, what is kinetic energy. What is potential energy? Potential energy means energy which is there in a body by the virtue of its height, by the virtue of its position. किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर एनर्जी है उसके पोजीशन की वजह से, then it is called as potential energy. Okay, जैसे for example, if this is a cliff, okay, and here there is a big rock. This big rock is at a particular height h. Because of this height, this rock has some potential energy. When this rock will fall down, okay, it will fall. There is potential energy in this rock. Okay, when this rock will fall down, that potential energy will convert into kinetic energy, and the rock will fall down. It will roll down with a great speed. Okay, and it can damage any object which is here, any obstacle which comes here. So how did the object get this energy? It got it because of its height, the potential energy, which later changed into kinetic energy when it fell down. Okay, you should know the potential energy and the kinetic energy are always same. जितनी potential energy होगी उतनी ही kinetic energy में convert होगी. Okay, then let's understand how does heat, what are the effects of heat, what are the different effects of heat. The first effect of heat is change in temperature of body. Change in the temperature of the body. Okay, now change in temperature means what? The quantity, this change in temperature, when a body is heated, okay, the temperature of that body rises. When the body is cooled, the temperature falls. Okay, so this changes depends upon two factors. The rise in temperature and the fall in temperature depends on two factors. Okay, it depends upon the quantity of heat and the material. कितना टेम्परेचर चेंज होगा ऑब्जेक्ट का हीट करने पे, वो डिपेंड करेगा आपने कितनी क्वांटिटी हीट अप्लाई की है एंड व्हाट इज द मटेरियल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ क्वांटिटी ऑफ हीट, जितना ज्यादा हीट सप्लाई करते जाओगे उतना ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स ऑब्जेक्ट के दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग. ओके, दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, देयर टेम्परेचर विल इंक्रीज. जितना ज्यादा हीट करोगे उतना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा. ओके, और मटेरियल का मतलब क्या है? कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो फास्ट हीट होते हैं, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो स्लो हीट होते हैं. ओके, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं फास्ट हीट होते हैं, कुछ स्लो हीट होते हैं. वो कैसे पता चलता है? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. Specific heat capacity. Just a second. There is some small construction work going on
in the next building. So there's some small background noise. I've tried to close the windows and avoid the noise. Let's continue. So I was saying specific heat capacity. Specific heat capacity is a number which tells us how much heat energy will be required to increase the temperature of any substance. Okay. For example, let's say there are two things I want to heat. In one case, there is water, and in other case, there is a block of iron. ठीक है, इस आयन का ब्लॉक है या पीस ऑफ आयन एंड वाटर, इन दोनों को हीट करना है. ठीक है. When you apply heat, when you will apply heat using a burner, let's say, okay, or using any object, when you apply heat to both of them, you will find that this block of iron will get immediately heated. बहुत जल्दी वो हीट पकड़ लेगा. ठीक है, और जल्दी गर्म होने लग जाएगा. बट ये जो वाटर है, इट विल टेक टाइम टू हीट. Water generally takes time to heat. Even if you let's say sometimes you might have noticed that if you want to heat water, आपको पानी को गर्म रख के at least 5-10 minutes you have to wait till the water starts boiling. Okay, but if you see the block of iron, आप उसे heat करोगे, ठीक है, immediately 30 seconds, 40 seconds, 45 seconds में वो इतना गर्म हो जाएगा कि आप उसको टच भी नहीं कर सकेंगे. Okay, ऐसा क्यों हुआ? Because specific heat capacity वाटर की बहुत ज्यादा है. मतलब वाटर को बहुत ज्यादा हीट देना पड़ता है टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए. बट आयन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है. थोड़ा सा हीट देने पे भी इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस. तो ऐसे अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है. ओके, यू विल स्टडी अबाउट दिस इन डिटेल इन 10th स्टैंडर्ड, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ओके, so the first point was change in temperature, how heat transfer affects the change in temperature of a body. Okay, the second point is the state of the body. How it affects the state of the body. Okay. Now, here you already know how heat affects the state. If you want, I'll draw the diagram to make you recall how heat affects the state of the body. You know, if a solid is heated, it will turn into liquid. If a liquid is heated, it will turn into gas. Okay, you also know the name of the process. When solid turns into liquid, we call it melting. When liquid turns into gas, it is called as vaporization. Okay, you have to understand, you have to remember, when solid turns into liquid and liquid turns into gas, in this side, in this case, heat is absorbed. हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट ले रही है. ठीक है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है. ओके, और डायरेक्टली भी होता है, डायरेक्टली सॉलिड से गैस भी होता है, डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस. That is called as sublimation. That is called as sublimation. Okay, now the reverse process. The reverse process is when gas becomes liquid, it is condensation. When liquid becomes solid, it is freezing. Okay, and when the gas becomes solid directly, this is called as solidification. This is called as solidification. Okay, so this is how the state of the body is affected because of heat. Okay, the state of the body. The state of the body means solid state, liquid state, and gaseous state. Okay.
how the size of the body is affected by heat. Now, if you think logically, what will happen? Because of heating, if you heat any object, because of heating, the object, the substance will expand. Heating leads to expansion, and cooling leads to contraction. Heating leads to expansion and cooling leads to contraction. Okay, we will learn a lot of applications how heating leads to expansion. In the latter part of the chapter, we will learn a lot of different applications. How because of heating there is expansion taking place, and how we overcome the problem of expansion, or how sometimes this expansion is helpful for us. Okay, so we saw three things. Heat can affect the temperature, heat can affect the state of the body, and heat can affect the size of the body. Okay. The next topic is how the temperature affects the molecular motion of a substance. How the temperature affects molecular motion. We will see that now. Okay, how temperature affects the molecular. See, when you heat any substance, the molecules which are present inside the substance get excited. Okay, the molecules get excited and they start vibrating. They start vibrating vigorously. The more amount of heat you give, the more vigorously will they vibrate. Okay, and because of this vibration, the state of change of state takes place. Or there is one more important thing: how liquid becomes vapor. The liquid becomes vapor. Vaporization. Okay, the liquid can change into vapor in two ways. The first one is evaporation, and the second one is vaporization. Okay, we have studied the difference between evaporation and vaporization in matter also. Let's just revise here once again. Okay, first of all, evaporation takes place at all temperature, and vaporization takes place at a fixed temperature. That is the boiling point. Okay, for water, it is 100 degrees Celsius, the boiling point where evaporation will take place. Okay, so evaporation can take place at all vaporization takes place at 100 degrees Celsius. Evaporation can take place at all temperature. Okay, because how it happens, for example, if you drop a water, when you place a drop of water on your hand, okay, and you keep it for some time, just rub it like this, take a drop of water on your hand, rub it like this, and keep your hand like this, it will evaporate in a few seconds. All the water will evaporate in a few seconds. Okay, did we heat the water here? No, still it changed from liquid to vapor state. Okay, why did this happen? Because it went through a process called evaporation. Okay, how can we understand evaporation in terms of molecules? Let's try to understand evaporation in terms of molecules. Okay, what happens is, see, let's understand what happens in evaporation in molecules. Now, there are certain differences between solids and liquids. In solids, the particles are very close to each other. You know, the particles are very close to each other.
The atoms are very close to each other. They are very strongly attached with each other. Okay, they are relatively in a fixed position. But in liquid, the particles are not very strongly attached with each other. Okay, they're free, they're moving. Okay, the speed of the particles of liquid is higher than the speed of the particles in solid. Okay, the distance between the particles in liquid is greater than in solid. Okay, so what happens is when we start heating a liquid, few molecules which are present on the surface of the liquid, okay, they lose their contact with the liquid. The contact between them is the cohesive force. We have studied two types of forces, cohesive force and adhesive force. Okay, there is cohesive force in liquids because both the liquids are of same nature. There is water molecule. समझो ये एक water का molecule है, ये एक water का molecule है. इनके बीच में जो attachment है, that is cohesive force. Okay, now that cohesive force is not strong enough. If we apply heat, this cohesive force is overcome and this molecule breaks free. Okay, this molecule breaks free and tries to goes into air. This is what is nothing but evaporation. What happens is, see, let's say this is a container and there is liquid here. कुछ molecules surface के कुछ molecules liquid के ऐसे होते हैं जिनके पास काइनेटिक एनर्जी कुछ ज्यादा होती है. ठीक है, तो यहां से जब उसको थोड़ा भी हीट मिलता है, ठीक है, थोड़ा भी अगर हीट मिल गया तो ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है, they start losing the attraction, their cohesive force decreases. Okay, and they try to break free from the liquid. Okay, and this is nothing but we call evaporation. They are not reaching a particular temperature, we are not giving them sufficient heat, but still they break free from the solid, from the liquid. Okay, that is why we say that evaporation takes place at all temperature and evaporation takes place at the surface of the liquid. Okay, when it comes to boiling takes place throughout the liquid. Okay, but evaporation takes place only at the surface of the liquid. Okay, now evaporation depends upon many different factors. Okay, like it depends upon the wind. If there is more wind, water will evaporate faster. Okay, if the surface area is more, water will evaporate faster. अगर पानी ज्यादा जगह में फैल गया है तो वो जल्दी इवेपोरेट होगा, अगर वो एक ही जगह पे कलेक्टेड है तो वो स्लोली इवेपोरेट होगा. ओके, देन ह्यूमिडिटी कितनी है एटमॉस्फेयर में, अगर कम ह्यूमिडिटी है तो जल्दी इवेपोरेट होगा. ज्यादा ह्यूमिडिटी है मतलब एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा पानी है, बहुत ड्रॉपलेट्स है पानी के, तो जो इवेपोरेशन है वो स्लो होगा. फॉर एग्जांपल योर क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई इन रेनी सीजन because there is already a lot of humidity in the air. But in summer season, in dry weather, the clothes will get immediately, the evaporation will take place in the clothes faster. Okay, they will get dried immediately because the weather has less humidity. Okay, so there are certain factors. I'll once again list down the factors which affect evaporation. Which factors affect evaporation? The first one is air, or you can say wind. जितनी ज्यादा wind होगी, जितना ज्यादा उतना fast evaporation होगा. Okay. Then second is surface area. If I increase the surface area, the evaporation will increase. The rate of evaporation will increase. Then we saw humidity. जितनी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी उतना इवेपोरेशन स्लो होगा. उल्टा रिलेशन है यहाँ पे. ओके, देन इवेपोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट. Evaporation produces cooling effect. You should know this. Like for example, if I sprinkle some water on your hand, okay, that water will slowly evaporate, but it will leave a cooling effect on your hand. Why? Because that water, while getting evaporated, used the heat from your body. समझो आपके हाथ में अगर पानी गिरा है तो वो पानी जब इवेपोरेट होगा
तो आपके हाथ के इतने पार्ट की जो हीट है वो उस हीट को लेके इवेपोरेट होगा, उस हीट के वजह से इवेपोरेट होगा. So the heat will be used up from that part of your body. So that part will feel cold because the heat is getting used up. अगर आप हीट को निकाल दोगे तो कूलनेस बचेगी. Okay, that is what happens in evaporation. Okay. So next is boiling. You know what boiling is? When we are heating something, it will reach to a certain point, let's say water at 100 degrees Celsius, when it will change its state. Okay, the molecular motion is so high that all the molecules will break free and turn into gaseous state. It is a simple activity, this simple thing, boiling. Okay, it doesn't need much explanation. Then for boiling, let's understand one important thing, how pressure affects boiling. Let's see how pressure affects boiling. That is important. I'll repeat. Effect of pressure on boiling. Effect of pressure on boiling. Let's say this is water. Okay. And I am applying heat here on water and trying to boil the water, means change its state from liquid to gases. Okay. Understand, जब लिक्विड गैसेस बनता है तो वो एक्सपांड हो रहा है. ठीक है, इतना सा लिक्विड है बट वो इतना ज्यादा स्टीम बन जाएगा. एक्सपांड हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन. ओके, सो दिस लिक्विड is becoming gas like this. It is expanding. Pressure. Let's talk about atmospheric pressure. एटमॉस्फेयर का एक प्रेशर होता है. ठीक है, एटमॉस्फेयर चीजों को दबाता है. प्रेशर का मतलब ही क्या है कि प्रेस समथिंग टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग. ओके, दैट इज प्रेशर. सो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता है, इस प्रोसेस को ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करता है. वो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ट्राइंग टू स्टॉप दिस फ्रॉम हैपनिंग. ओके, एंड द हीट इज ट्राइंग टू एक्सपांड इट. मतलब हीट क्या काम कर रहा है, एक्सपांड का. एटमॉस्फेयर क्या काम कर रहा है, प्रेशर अप्लाई करने का. ओके, सो दिस थिंग कीप्स ऑन हैपनिंग. हमें हीट क्यों चाहिए, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम करने के लिए, और ये वाटर गैस बन जाएगा. ओके, बट अभी क्या हो गया, अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज करूं, मतलब मैं चेंज नहीं कर सकता. ठीक है, बट इफ आई गो टू अ प्लेस वेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ आई एम गोइंग एट द टॉप ऑफ अ माउंटेन, at the top of a mountain the atmospheric pressure is less. ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है वहां पे. ओके, अगर एटमॉस्फेरिक का प्रेशर कम होगा
तो ये जो प्रोसेस है मेरा हीट करके एक्सपांड करने का, ये इजीली हो जाएगा, ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ओके, सो नॉर्मल टेम्परेचर में क्या हो रहा था, लेट्स से द वाटर वाज बॉइलिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर बॉइल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, इट टेक्स सम टाइम टू, ऊपर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर आ रहा है, बट हम हीट दे रहे और जिससे वो एक्सपांड हो गया, बॉइल हो गया। ठीक है, लेकिन माउंटेन के टॉप पे क्या होगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। अगर ये कम होगा तो ये हीट हम अप्लाई करते जा रहे हैं, ये वाटर जल्दी एक्सपांड होगा। ठीक है, जल्दी एक्सपांड हो जाएगा, तो वो 100 डिग्रीज नहीं 80 डिग्रीज पे ही वाटर बॉइल हो जाएगा। वाटर विल बॉइल एट 80 डिग्रीज बिकॉज प्रेशर ही कम है। ठीक है, कम प्रेशर है तो काम जल्दी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? That is why on mountains the water boils at a temperature below 100 degrees Celsius. This is a give reason they ask you in exam. Okay, at mountains the water boils at a pressure at a temperature less than 100 degrees Celsius. Okay, this is very important. Remember this. Okay, if you increase the pressure, अगर आप pressure increase करोगे, समझो आपने बहुत ज्यादा pressure apply किया, तो ये water को boil होने के लिए 100 डिग्री से भी ज्यादा temperature लग सकता है, because pressure ही इतना ज्यादा है, expand नहीं हो पा रहे। तो इसलिए मे बी इट कैन टेक अ टेम्परेचर हायर देन 100 डिग्री सेल्सियस। इट कैन हैपन दैट 100 डिग्री सेल्सियस किसके लिए होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर के लिए। ओके, नॉर्मल कंडीशंस में, बट व्हेन द कंडीशंस चेंज द बॉइलिंग पॉइंट में आल्सो चेंज। ओके, नाउ they have given you the difference between vaporization and evaporation. That is simple, you can learn that, differentiate easily. You have already done that in matter chapter. Here also again revise that. Now we are done with the effect of temperature on evaporation and boiling. Now let's understand what is expansion, what is thermal expansion. Next topic is thermal expansion. Now we'll understand this thermal expansion with the help of an experiment. Let's say this is a stand. Okay, on this stand here I have a ring and I have a metal ball which is of a size exactly that of this ring. Okay, exactly a ring की size कितनी है, उसी size का एक metal ball है, ये ऐसा। ठीक है, जो यहाँ से tie किया हुआ है। ओके, अब ये मेटल बॉल इजीली पास हो सकता है रिंग में से। ओके, दिस मेटल बॉल कैन इजीली पास थ्रू द रिंग बिकॉज वो एग्जैक्ट साइज का है, तो वो इजीली इस रिंग में से पास हो जाता है। आप समझ रहे हो? सी दिस इज द मेटल बॉल, दिस मेटल बॉल, और वो इस रिंग में से पास हो गया इजीली बिकॉज इसकी जो साइज है, you can say it is exactly equal to the ring or it is just a little small than the ring, so इसलिए तो ये पास हो गया इजीली। ओके, तो ये नॉर्मल है। बिफोर हीटिंग, अब मैं क्या करूंगा, इस मेटल बॉल को हीट करूंगा, इस मेटल बॉल को आई विल हीट। हीटिंग की वजह से एक्सपांशन होगा, तो ये मेटल बॉल की जो साइज है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, जो मेटल बॉल की साइज है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ओके, इस वजह से क्या होगा कि उस सेम रिंग में से जब आप अभी ट्राई करोगे उस मेटल बॉल को पास करने के लिए, तो वो पास नहीं होगा, इट विल स्टक हियर, इट विल गेट स्टक हियर, वो अटक जाएगी। वो मेटल बॉल जो बॉल है वो पास नहीं हो पाएगा रिंग से बिकॉज उसकी साइज थोड़ी सी बढ़ गई, और रिंग तो उतनी ही है, रिंग हीट नहीं हुई है, बॉल हीट हुआ है, तो बॉल की साइज बढ़ गई, इट कैन नॉट पास थ्रू द रिंग। इट प्रूव्स दैट देयर इज थर्मल एक्सपांशन। थर्मल मींस टेम्परेचर की वजह से एक्सपांशन हुआ, थर्मल मींस हीट, हीट की वजह से एक्सपांशन हुआ। समझ गए? Now there are a lot of applications of thermal expansion.
there is one experiment of a bar and a gauge. ये एक फिटिंग का टाइप होता है, फिटिंग का, ठीक है, मतलब जो ऐसे इसका शेप होता है. ओके, दिस इज द गेज एंड यहाँ पे एक बार होता है. Okay, this bar exactly fits into this gauge. Okay, but when you heat the bar, the size of the bar will increase a little. The size of the bar will increase a little. And now if you try to fit that into the gauge, it will not fit. Because thermal expansion hua hai yahan pe. Okay, this is what happens. Now this thermal expansion is of three types. Thermal expansion is of three types. Which are the three types? Let's understand. Linear expansion, superficial expansion, and cubical expansion. Linear, superficial, and cubical expansion. There are three types of expansions here. Okay, let's understand one by one. What does it mean? See, linear expansion means किसी भी चीज की लेंथ इंक्रीज होती है उसे हीट करने पे. किसी भी चीज को हीट करने पे अगर उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है तो इट इज कॉल्ड एज लीनियर एक्सपांशन. किसी भी चीज को हीट करने से उसका एरिया इंक्रीज हो रहा है, ओके, तो उसे कहते हैं सुपरफिशियल एक्सपांशन. And by heating something, if the volume of that substance increases, then we call it as cubical expansion. Understood? If length increases, linear expansion, area increases, superficial expansion, and volume increases, it is cubical expansion. Okay. Now these expansions depend upon certain factors. Okay. Like the factors are same for all three. So I'll just list down the factors, then we'll discuss it. The first factor, linear expansion किस पे depend करेगा? Original length पे, temperature पे, and material पे. Linear expansion will depend upon the original length, temperature, and material. Okay. The superficial expansion will depend on the same factors. It will also depend upon temperature. It will also depend upon material. And this will depend upon the original area. वो depend करेगा original area पे. मैं बताऊंगा क्या होता है original area. And ये depend करेगा original volume, temperature, and material. Okay. Let's understand these factors. Linear expansion समझते पहले. Let's say I have a rod. This is a rod. Metal rod. Okay. अब ये metal rod का length है, let's say इस metal rod का length है 10 meters. If you heat this metal rod, the rod will expand. Okay. अब इसकी length बड़ी है, तो जब ये expand होगा ना, तो इसकी length ही ज्यादा expand होगी. समझ रहे हो? जो चीज जो डायमेंशन बड़ा होता है ना वही और ज्यादा बड़ा हो जाता है. ओके, तो इसकी लेंथ 10 मीटर्स है तो इसकी लेंथ एक्सपांड होगी. ओके, और मे बी एक्सपांड होके 10.5 बन जाएगी. ओके, कितना बन जाएगी? 10.5 बन जाएगी. ठीक है. अगर आपने इससे भी बड़ा रॉड लिया, लेट्स से आपने एक रॉड लिया, विच इज 20 मीटर्स का रॉड है. ओके, उसको आपने हीट किया. यू विल फाइंड दैट आफ्टर हीटिंग ये 20 मीटर का रॉड बन जाएगा 21 मीटर. ओके, मतलब इसमें जितना लेंथ बड़ा होता है उतना और ज्यादा लेंथ इंक्रीज हो जाएगा हीट करने पे. सो जो लेंथ लीनियर एक्सपांशन है, इट डिपेंड्स अपॉन द ओरिजिनल लेंथ. अगर ओरिजिनल लेंथ कम है
तो एक्सपांशन भी कम होगा। अगर ओरिजिनल लेंथ ज्यादा है तो एक्सपांशन भी ज्यादा होगा। अंडरस्टूड? जो पहले अगर चीज कोई छोटी है तो उसका एक्सपांशन भी छोटा होगा, बट अगर वो चीज बहुत लंबी है तो उसका एक्सपांशन भी ज्यादा होगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन द ओरिजिनल। सेम गोज फॉर एरिया एंड वॉल्यूम। सुपरफिशियल एक्सपांशन जो एरिया पे डिपेंड करता है, क्यूबिकल एक्सपांशन जो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। ये दोनों चीज भी, अगर ओरिजिनल वॉल्यूम छोटी है तो एक्सपांशन भी कम होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम बड़ा है तो एक्सपांशन भी बड़ा होगा। ओके, so you should know these three factors. Now we also need to remember three equations for linear, superficial and cubical expansion. Okay, I'll list the equations on the board. Now I have written here L0. Okay, I have written L0 means the length of the rod at 0 degrees Celsius. Then I have written LT, the length of the rod at T degree Celsius. T degree Celsius मतलब कोई भी टेम्परेचर जो आपने चूज किया है। समझो पहले 0 डिग्री पे था रॉड, फिर आपने 10 डिग्री तक हीट किया उसको, ठीक है? तो लेंथ ऑफ द रॉड एट 10 डिग्री सेल्सियस, तो T की जगह पे 10 लिख देना। Okay, so T can change. It can be 5 degrees, 10 degrees, 15 degrees, 20 degrees, anything, up to you. Okay. So पहले लेंथ थी L0, फिर लेंथ हो गई LT। तो मतलब कितनी लेंथ इंक्रीज हुई है? लेंथ कितनी इंक्रीज हुई है? LT minus L0. Okay, the increase in length is LT minus L0. Okay, now this LT minus L0 is given by the formula L0 अल्फा T। क्या फॉर्मूला है? L0 into अल्फा, this is alpha, this is the sign of alpha and this is T। मैं बताता हूँ मीनिंग क्या होता है। L0 का मतलब जो ओरिजिनल लेंथ है उसको आप अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे। अल्फा क्या है? What is alpha? Alpha is different for different substances. Alpha is coefficient of linear expansion. What is alpha? It is coefficient of linear expansion. Coefficient मतलब क्या? कि एक नंबर है जो नंबर आपको ये बताएगा कि कोई भी चीज कितना एक्सपांड होती है। कोई भी चीज, हर चीज सेम तरीके से एक्सपांड नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं एक मेटल रॉड को हीट कर रहा हूँ, एक प्लास्टिक रॉड को हीट कर रहा हूँ, दोनों को मैंने सेम हीट दिया, फिर भी दोनों अलग अलग टाइप से एक्सपांड होंगे। एक ज्यादा एक्सपांड होगा, एक कम एक्सपांड होगा। क्यों? बिकॉज उनका लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अलग अलग है, सब मटेरियल अलग बिहेव करते हैं। ओके, सो दिस अल्फा is a specific value. You can see there is a table in your book which will give you the value of alpha for different substances. Okay, जैसे एल्यूमिनियम है तो उसके लिए 24 है। इनवर इज अ सब्सटेंस, इनवर जिसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन 0.9 है, और अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो इट इज 24। मतलब हीट करने पे एल्यूमिनियम काफी एक्सपांड होगा, काफी ज्यादा एक्सपांड होगा, बट इनवर ऑलमोस्ट ना के बराबर एक्सपांड होगा हीट करने पे। ठीक है, 0.9 मींस इट इज वेरी लेस। इसलिए जो पेंडुलम क्लॉक्स होती है उसमें जो पेंडुलम बना हुआ होता है वो इनवर के एलॉय का बनता है, सो दैट कुछ एक्सपांशन ना हो वहां पे, बिकॉज पेंडुलम क्लॉक डिपेंड्स अपॉन द पेंडुलम। अगर वो पेंडुलम की साइज छोटी बड़ी हो गई तो जो क्लॉक है उसके एक्यूरेसी पे इफेक्ट होगा। ओके, सो फॉर्मूला क्या है? द चेंज इन लेंथ, that is the length at T degree Celsius minus the length at 0 degree Celsius, is the original length into coefficient of linear expansion into temperature. Temperature means temperature भी important है, आप कितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उतना ज्यादा बढ़ने ही वाला है। ठीक है, जितना ज्यादा हीट सप्लाई करोगे उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। ओके,
Now the same type of formula is for superficial expansion and for cubical expansion also. Okay, superficial expansion के लिए we use the alphabet A because area है ना, so original area AO, area at 0 degree Celsius, and then area at T degree Celsius. T degree Celsius पे कितना एरिया है? तो चेंज इन एरिया क्या होगा? AT माइनस AO, चेंज इन एरिया, ओके, इक्वल्स जो ओरिजिनल एरिया है इनटू, अब इसका भी अलग कोएफिशिएंट है, इसके कोएफिशिएंट को हमने नाम दिया है बीटा. क्या सिंबल रखा है? बीटा, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन. तो यहाँ पे बीटा मल्टीप्लाई होगा इनटू टेम्परेचर. ओके, और वॉल्यूम के लिए इट इज गामा. सो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है V0, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस. फॉर्मूला इज VT minus V0 equals V0 into gamma into T. देखो सेम है, खाली वेरिएबल्स चेंज हुए हैं, फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट सेम है, बट आपको ये याद रखना पड़ेगा लीनियर एक्सपेंशन के लिए अल्फा, सुपरफिशियल के लिए बीटा, क्यूबिकल के लिए गामा. यू हैव टू रिमेंबर दिस, देयर इज नो ऑप्शन हियर. Okay, now you have understood the concepts of heat transfer and how thermal expansion takes place. So once we have understood the concepts, we can now move on to understand the applications in daily life, applications of this heat transfer and thermal expansion. Okay, so let's move on to the applications. This all information is there in the textbook. I have written it in tabular form here. But ये पूरा information है textbook के अंदर, so you can refer there. Just a second.
applications of thermal expansion. First application is construction of bridge. How during construction of bridge you have to take care of the thermal expansion. See, I'm not talking about the normal bridges which we have on the highways, not those bridges. The bridges which connect two peaks, or bridges which is over the rivers. Metal bridges, we are talking about metal bridges here. Okay, so see, अगर ये एक क्लिफ है, ये एक क्लिफ है, ठीक है, और आपको इन दोनों क्लिफ को ज्वाइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, if you have to make a bridge, okay, so this is something you will make a bridge, something like this. कुछ ऐसा आपका ब्रिज होगा. This is how, यहाँ से फिर आपके व्हीकल्स पास होंगे ब्रिज में से, ठीक है. बट दिस इज अ मेटल ब्रिज. सो समर एंड विंटर, सी क्या होता है, विंटर में टेम्परेचर फॉल्स, इन समर टेम्परेचर राइजेस. When the temperature rises, it is possible that this metal, because of the intense heat, can expand. अगर ये मेटल एक्सपांड होगा, ठीक है, एक्सपांड होने का मतलब ये नहीं कि ब्रिज की साइज डबल हो जाएगी, थोड़ा एक्सपांशन होता है. ओके, थोड़ा एक्सपांशन होता है. अगर ये ब्रिज एक्सपांड होगा, अगर थोड़ा भी एक्सपांड होगा, तो इस ब्रिज को तो हमने फिक्स कर लिया है यहाँ पे दोनों साइड में, ठीक है. तो अगर ये एक्सपांड होगा तो इट विल ब्रेक, कहीं ना कहीं से ये ब्रेक होगा, बिकॉज एक्सपांड तो होगा ही. ओके, तो कहीं ना कहीं से ब्रेक होगा, या तो ये बेंड हो जाएगा बिकॉज इसको एक्सपांड होने के लिए जगह नहीं मिल रही. तो ओके, तो या तो ब्रिज डैमेज होगा या तो बेंड हो जाएगा. तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब हम ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ऑन वन साइड ऑफ द ब्रिज, नीचे, ब्रिज के नीचे, ओके, एक साइड में हम क्या करते हैं, रोलर्स रखते हैं छोटे, ऐसे रोलर्स अटैच करते हैं, रोलर्स लाइक दिस, ठीक है. और थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे एम्प्टी रखते हैं, थोड़ा सा स्पेस. ओके, सो जब ब्रिज अगर एक्सपांड होगा तो फर्स्टली कोई फ्रिक्शन नहीं होगा. इन रोलर्स की वजह से ब्रिज इजीली एक्सपांड हो पाएगा, आगे जा पाएगा, ठीक है. और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस रखते हैं, सो वो एक्सपांड होगा, उस स्पेस को कवर करेगा. विंटर में वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, समर में एक्सपांड होगा, विंटर में कॉन्ट्रैक्ट होगा. दिस इज अ स्लो प्रोसेस. ओके, इट गोज ऑन थ्रू आउट द ईयर. सो एक्सपांड होने के लिए रोलर्स रखा है, सो फ्रिक्शन नहीं होगा, एंड थोड़ा सा स्पेस रखा है उसे एक्सपांड होने के लिए. ओके, दिस इज हाउ दिस प्रिकॉशन इज टेकन व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग ब्रिजेस. ओके, द सेम थिंग गोज विथ railway tracks. In railway tracks, see, these are the railway tracks like this, and on the railway tracks you have wooden sleepers like this. ये wooden sleepers होते हैं railway tracks पे, ठीक है. अब ये जो tracks होती है ना रेलवे की, ये पूरी कनेक्टेड होती है, बट पूरा सिंगल पीस नहीं होता, इसमें ब्रेक्स होते हैं बीच बीच में. समझो ये इतना है, ओके, देन नेक्स्ट ट्रैक स्टार्ट होगी यहाँ से, फिर यहाँ पे वापस एक छोटा सा गैप होगा, छोटा सा गैप, इतना छोटा गैप कि उसमें से लेट्स से 2-3 सेंटीमीटर का गैप होगा. ट्रेन उसके ऊपर से पास हो सकती है इजीली. ओके, इतने से गैप से कोई ट्रेन डीरेल नहीं हो जाएगी. बहुत छोटा सा गैप है, तो उतना सा गैप तो ट्रेन कवर कर लेगी. ओके, बट ऐसे छोटे छोटे थ्रू आउट द ट्रैक हम ऐसे छोटे छोटे गैप्स छोड़ते रहते हैं. ओके, सो दैट समर में जब ये मेटल से बनी हुई ट्रैक एक्सपांड होगी, तो ये जो गैप्स है ना, ये गैप फिल हो जाएंगे. उस एक्सपांशन की वजह से ये गैप फिल हो जाएंगे ऐसे. ओके, ये वाला गैप भी फिल हो जाएगा ऐसे. एंड दे know how much expansion takes place because they are doing experiments, they are studying, they are observing for several years. तो उनको पता है कि हर साल कितना एक्सपांशन होता है. तो उनको पता है अगर कि 5 मीटर एक्सपांशन होने वाला है थ्रू आउट द रेल, तो वो 5 मीटर मीन्स 500 सेंटीमीटर्स. ओके, तो वो 50 जगह पे, 50 प्लेसेस पे 10 सेंटीमीटर का गैप छोड़ देंगे. ओके, तो वो थोड़ा थोड़ा सब जगह पे एक्सपांशन होगा, एंड जो ट्रैक में कोई डैमेज नहीं होगा. अगर आप ये स्पेस नहीं लीव करोगे तो ट्रैक तो एक्सपांड होगी ही, तो एक्सपांड होने की वजह से इट में बेंड, इट में ब्रेक, कुछ भी हो सकता है जिससे एक्सीडेंट हो सकता है. सो वी हैव टू टेक प्रिकॉशन एंड यू हैव टू लीव, एंड सम स्पेसेस आर लीव्ड व्हाइल मेकिंग रेलवे ट्रैक्स. ओके,
नेक्स्ट इज रिवेटिंग। रिवेटिंग मतलब स्क्रू फिट करना, ठीक है। समझो एक मेटल की प्लेट है और एक और मेटल की प्लेट है। आई हैव टू अटैच बोथ ऑफ देम, मुझे इन दोनों को अटैच करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें होल करेंगे, ओके। इसमें होल करेंगे और इसके अंदर जो वो स्क्रू होता है, ठीक है, जो रिवेट होता है, उसे थोड़ा सा हीट करेंगे। हीट करने से वो रिवेट सॉफ्ट हो जाता है, तो सॉफ्ट होके वो इजीली इसके अंदर चले जाएगा, ओके। थोड़ा सा हीट किया, वो सॉफ्ट हो गया, वो अंदर चला गया। देन इट विल कीप इट एज इट इज। व्हेन इट विल कूल, इट विल, जो क्या होगा कि कूल होने के बाद वो हार्ड हो जाएगा एकदम, ठीक है। ऑन कूलिंग दे विल कॉन्ट्रैक्ट बट दे कैन नॉट रीगेन द ओरिजिनल साइज। वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये जो थोड़ा सा एक्सपांड हुआ है, सी एक्सपांड का मतलब कैसे, थोड़ा सा लंबा हो गया, ठीक है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वो वापस पूरा फिक्स हो जाएगा, ऐसे पूरा फिक्स हो जाएगा। तो इस वजह से ये एकदम ऐसे फिक्स हो जाएगा इसके ऊपर, और फिक्स होने की वजह से इसको निकालना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये दोनों प्लेट्स जो है ये पूरे परफेक्ट लॉक हो जाएंगे एक दूसरे से, ओके। तो उसको अंदर डालने के लिए हमने हीट का यूज किया एंड देन वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया, ओके। ऐसा एक और एग्जांपल है टेलीफोन वायर्स। टेलीफोन वायर्स जब बनाते हैं, टेलीफोन वायर्स, तब सी फ्रॉम वन पोल टू अनदर, इसके बीच में ऐसे वायर्स होते हैं, टेलीफोन के वायर्स होते हैं, ओके। सो ये वायर्स जब बनते हैं तो समर सीजन में दे विल एक्सपांड, विंटर में दे विल कॉन्ट्रैक्ट, ओके। तो आप लोगों को वायर्स जब लगाते हो तो थोड़ा सा लूज रखना पड़ता है, ओके। यू कैन नॉट मेक वायर्स एकदम टाइट, एकदम फिट, नो, बिकॉज व्हाट विल हैपन दैट विंटर में वो थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हो गए, उनकी साइज थोड़ी कम होगी। अगर आपने फिट रखा है एकदम, और अगर साइज कम होने का स्पेस ही नहीं है, तो वायर्स विल ब्रेक। अगर आपने थोड़ा लूज रखा है ऐसा, तो अगर उनकी साइज छोटी भी हो गई, ठीक है, अगर उनकी साइज छोटी भी हो गई तो वो ऐसे हो जाएगा, इधर ऊपर आ जाएगा, थोड़ा सा साइज छोटी हो गई तो समर में जब एक्सपांड हो गए तो वो और थोड़ा लूज हो जाएंगे और वो नीचे आ जाएंगे ऐसा। विंटर में वो थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, उनकी साइज कम हो जाएगी। तो ये एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा वायर होनी चाहिए, तो इसीलिए वायर्स आर ऑलवेज एक्स्ट्रा वायर्स आर टेकन इन टेलीफोन लाइंस, ओके। Then a steel rim fitted over wooden wheel. वुडन व्हील है हमारे पास, ठीक है, एक वुड की व्हील बनी हुई है। ये वुड की व्हील है और इस पे एक स्टील का रिम लगाना है, स्टील की बाउंड्री, ठीक है। तो हम स्टील की बाउंड्री कैसे बनाते हैं, एग्जैक्टली ये व्हील के साइज की, एग्जैक्टली ये व्हील के साइज की हम एक रिम बनाएंगे स्टील की, ऐसे। अब अगर ये सेम साइज है तो इसे हम डायरेक्टली डाल नहीं सकते, सेम साइज है। थोड़ा सा बड़ा होता तो हम इसके ऊपर फिट कर देते, बट सेम साइज है तो डालना मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, इस रिम को थोड़ा हीट करेंगे, तो ये रिम थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, ओके। फिर इसको वुड के ऊपर डाल देंगे एंड देन वी विल लीव इट। जब वो कूल हो जाएगा तो थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और इस वुड के ऊपर पूरा फिक्स हो जाएगी एकदम अच्छे से। तो थोड़ा सा हीट किया तो वो थोड़ा सा एक्सपांड हुआ, व्हील के ऊपर लेके गए, लगा दिया, कूल हो गया तो एकदम फिक्स हो जाएगा अच्छे से, ओके। दिस वाज वन मोर एग्जांपल एंड देयर आर सेवरल अदर एग्जांपल्स लाइक ग्लासवेयर। जो हम घर पे ग्लास की चीजें यूज करते हैं, ग्लास की, दैट इज मेड अप ऑफ पायरेक्स, दैट इज मेड अप ऑफ पायरेक्स ग्लास। कि बिकॉज पायरेक्स ग्लास एक ऐसी ग्लास है जिसका क्यूबिकल एक्सपांशन बहुत कम है, मतलब वो बहुत कम एक्सपांड होती है। फॉर एग्जांपल उसके अंदर आपने गर्म पानी, गर्म चाय या एनी बेवरेज कोई भी डाली तो उस ग्लास एक्सपांड नहीं होनी चाहिए, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम पायरेक्स यूज करते हैं, पायरेक्स ग्लास, ओके। देन हमने पेंडुलम का एग्जांपल ऑलरेडी देखा था, दैट पेंडुलम के अंदर वी यूज
एलॉय ऑफ इनवर, बिकॉज इनवर का जो एक्सपांशन है वो बहुत ही कम है। कितना भी टेम्परेचर चेंज हो जाए इनवर बहुत कम एक्सपांड होता है, इसलिए हम इनवर यूज करते हैं। ओके अगर आपको किसी बॉटल के ऊपर समझो मेटल का कैप है, आपको उसको लूज करना है मेटल कैप को, तो आप थोड़ा सा उसे हीट करो तो वो मेटल थोड़ा सा एक्सपांड हो जाएगा और वो बॉटल की कैप इजीली ओपन हो जाएगी। मेटल कैप अगर होगा किसी के ऊपर और वो ओपन नहीं हो रहा है तो आपको थोड़ा सा उसे लूज करना है और वो ओपन हो जाएगा। ओके दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। क्रैकिंग ऑफ थिक ग्लास टम्बलर। ग्लास टम्बलर मीन्स एक छोटा सा ग्लास का स्टोरेज कैन टाइप। ओके उस पे अगर आपने गर्म पानी थोड़ा सा डाल दिया उसके ऊपर तो वो जो कैन है वो ब्रेक हो जाता है। ओके वो भी हीट एक्सपांशन की वजह से ही होता है, वो थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है बिकॉज हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती। आप उसे इजीली ओपन कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स व्हिच in which you can see thermal expansion. So this was about thermal expansion in solids. जितनी भी एप्लीकेशंस हमने देखे ये सॉलिड्स के बारे में देखे। थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड में भी होता है। ओके लिक्विड्स आल्सो एक्सपांड ऑन हीटिंग, वी नो दैट। ओके बट आपको एक एक्सेप्शन पता होना चाहिए फॉर वाटर। You might know about the anomalous behavior of water. What is the anomalous behavior of water? See, कोई भी चीज को जब हीट करते हैं तो वो एक्सपांड होनी चाहिए, लेकिन वाटर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर वाटर के टेम्परेचर को मैं बढ़ा रहा हूं तो वाटर शुड एक्सपांड। ओके बट 0 to 4 डिग्रीज के बीच में वाटर उल्टा बिहेवियर दिखाता है। इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग इट कॉन्ट्रैक्ट्स। आई एम हीटिंग, ओके तो इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स और 4 डिग्रीज के बाद इट स्टार्ट्स हीटिंग, इट एक्सपांड्स। नॉर्मल बिहेवियर, नॉर्मल बिहेवियर दिखाता है। ठीक है और इसका उल्टा जब आप वाटर को कूल करते हो, जब आप वाटर को कूल करते हो, ठीक है तो 0 डिग्रीज 4 डिग्रीज 100 डिग्रीज जब आप कूल करते हो तो चीज कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। ओके कूल करने पे तो वाटर कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन 4 डिग्रीज के बाद 0 डिग्रीज तक कूल करने पे वो एक्सपांड होता है। मतलब ये जो रेंज है 0 to 4 डिग्रीज के बीच में, यहाँ वाटर उल्टा बिहेवियर दिखाता है। हीट करने पे कॉन्ट्रैक्ट, कूल करने पे एक्सपांड। दिस इज कॉल्ड एज anomalous behavior of water. Anomalous behavior of water. Now they have shown a very simple experiment to show the expansion of water. ये वाटर का एक्सपांशन क्या कैसे होता है उसके लिए एक सिंपल एक्सपेरिमेंट दिया है। क्या एक्सपेरिमेंट है? क्या एक्सपेरिमेंट होता है कि एक कैन लो, ठीक है इसको पूरा एयर टाइट बंद कर दो, इसमें एक स्ट्रॉ रखो, स्ट्रॉ, ठीक है और पानी पानी भरो इसके अंदर। ओके और इस स्ट्रॉ में भी पानी समझो ये लेवल तक आ गया। दिस इज ऑल वाटर। ओके नोट डाउन दिस लेवल ऑफ वाटर। स्टार्ट हीटिंग, start heating. After some time you will see that this water level will rise. यहाँ तक आ जाएगा। क्यों इंक्रीज हुआ ये वाटर लेवल? हमने वाटर पोर तो किया नहीं अंदर, नीचे से भी नहीं किया, ऊपर से भी नहीं किया, तो ये वाटर लेवल बढ़ा कैसे? बिकॉज ऑफ एक्सपांशन, बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपांशन। ओके
Now you have to understand that different liquids will expand in different ways. Yes, I can see your message bar. Just wait. I'll take all the doubts in the end. I'll clear the doubts. Don't worry. So different liquids different तरीके से expand होते हैं. ठीक है? In your book, you may see this figure 6 point. This type of figure. For Christchurch, it is 116 page number. For Peters also, you have this diagram. See this diagram in your book. This diagram shows that in 4 different vessels, glass bottles, we are taking 4 different liquids: water, alcohol, kerosene, and benzene. 4 different liquids. Okay, और 4 bottles ऐसे. Same size bottles. Same size bottles. Okay. और सब में हमने सेम लेवल ऑफ लिक्विड फिल किया है. सब में ऐसे स्ट्रॉ रखे हैं, ठीक है, एंड दे आर फिल्ड विद लिक्विड इन द सेम लेवल. सेम लेवल से फिल किया. अब चारों को हीट किया. दे आर अप्लाइड हीट. After some time, you will see that the rise in water level will be different in different liquids. Water का level समझो यहाँ तक पहुंचेगा. केरोसिन का level यहाँ तक पहुंच जाएगा. ओके. अल्कोहल का इससे भी ऊपर. एंड बेंजीन सबसे ज्यादा. The level of water rise will be different for different liquids. क्यों? Because different liquids का coefficient of expansion gamma, cubical expansion का जो coefficient है gamma, it is different for different liquids. Different for different liquids. Coefficient of cubical expansion is different for different liquids. Okay? कोई liquid ज़्यादा expand होता है, कोई liquid कम expand होगा. Okay? आप जो हमारा थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर टू मेजर टेम्परेचर व्हेन यू आर हैविंग फीवर. ओके, यू मेजर टेम्परेचर. तो वो जो आपका मर्क्यूरी होता है उसके अंदर, मर्क्यूरी, दैट मर्क्यूरी आल्सो वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल ऑफ एक्सपांशन. जब आपके बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, आपने थर्मोमीटर आपके बॉडी के कांटेक्ट में लाया, टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो मर्क्यूरी एक्सपांड होता है. समझे? वो मर्क्यूरी एक्सपांड होता है एक्चुअली, और आपको वो दिखाई देता है कि यस, हाँ, द टेम्परेचर इज दिस मच. फिर आप नॉर्मल टेम्परेचर पे लाओगे तो मर्क्यूरी विल कॉन्ट्रैक्ट. It works on the same principle of expansion, thermal expansion. Okay. Now this expansion also takes place in gases. इसका भी एक simple experiment है gases का. For example, if you have a bottle, if you take a glass bottle, let's say like this, okay, और इसके ऊपर आपने एक बलून लगा दिया, बलून, एक बलून टाई किया इसके ऊपर, ठीक है. देयर इज एयर इनसाइड द बॉटल. नाउ यू हीट द बॉटल. तो क्या होगा, जो इसके अंदर ये एयर है, ये एयर भी हीट होगी. ये एयर के जो मॉलिक्यूल्स है वो भी एक्साइट होंगे, और इस वजह से ये एयर भी एक्सपांड होगी, ये गैस भी एक्सपांड होगा. और एक्सपांड होके ये जाएगा कहाँ पे? देयर इज नो एग्जिट हियर एंड देयर, सो इट विल गो इन दिस बलून, एंड आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट दिस बलून will get fully blown, because जो अंदर एयर थी यहाँ पे, वो एयर एक्सपांड हो गई, और ये बलून क्या हो गया? बड़ा हो गया. एयर, कोई नई एयर नहीं आई है बाहर से, वही एयर एक्सपांड हुई है हीट करने की वजह से. ओके, दिस इज एक्सपांशन इन गैसेस. And the last relation, one last relation we need to know is the relation between density and temperature.
डेंसिटी एंड टेम्परेचर का रिलेशन, ठीक है। डेंसिटी का मतलब क्या है कि कितना ज्यादा क्लोजली पैक्ड है कोई चीजें, ओके, हाईली डेंस, लेस डेंस, मोर डेंस, ओके। तो टेम्परेचर और डेंसिटी का क्या रिलेशन है? व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, सी दिस, व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, ओके, कोई भी चीज एक्सपांड होगी। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है? कोई भी चीज एक्सपांड होती है, और अगर कोई भी चीज एक्सपांड हो रही है तो स्पेस बढ़ रहा है। अगर स्पेस बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम हो रही है। डेंसिटी का मतलब क्या? कितना नजदीक नजदीक होना, ओके। बट आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसलिए स्पेस बढ़ गया, स्पेस बढ़ गया तो डेंसिटी कम हो गई, सो द डेंसिटी डिक्रीजेस। दिस इज द रिलेशन। इसका उल्टा क्या होगा कि अगर आपने टेम्परेचर कम किया तो चीज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट होगी मतलब और नजदीक आ जाएगी। अगर और नजदीक आ जाएगी तो डेंसिटी और बढ़ जाएगी, भीड़ और बढ़ जाएगी, ओके। मॉलिक्यूल्स विल कम क्लोज टू ईच अदर, द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस विल रिड्यूस, ओके। सो यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज द शॉर्ट वे इन विच यू कैन रिमेंबर द एंटायर पैराग्राफ. You can write this in your textbook where that relation is given. When temperature increases, things expand, density decreases. When temperature decreases, things will contract, density increases. Okay, so for Christchurch, this is it. Chapter is done. For Peters, wait for 5 more minutes because you have one extra topic in your textbook. Peters, that's it for today. I can see there are some doubts coming. I'll quickly discuss the doubts. So someone is asking, hot air balloon flies when fire is blown on the cloth doesn't catch fire. See, in the hot air balloon, जो वो fire होता है और जो cloth होता है, वो दोनों अलग अलग मटेरियल के बने हुए होते हैं, ओके। वो जो क्लॉथ होता है वो अलग मटेरियल का बना हुआ होता है, ओके। तो इस वजह से दे विल नॉट कैच फायर, और उस फायर को डायरेक्टली क्लॉथ के ऊपर नहीं लाते। वो फायर अलग होता है, उस फायर से जो एक्सपांशन होता है एयर में, दैट एक्सपांशन ऑफ एयर इज यूज्ड टू फ्लाई द बलून, ओके। देन आइस इज लेस डेंसर देन वाटर, यस। आइस सॉलिड होते हुए भी वाटर से कम डेंस है, क्यों? बिकॉज आइस एक्सपांड होके बनता है। जब वाटर एक्सपांड होता है, जब वाटर आइस बनता है, ठीक है, जब वाटर आइस बनता है फ्रीज होके, तो वो थोड़ा सा एक्सपांड होता है, और कोई भी चीज अगर एक्सपांड होती है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, ओके। व्हेन वाटर बिकम्स आइस इट एक्सपांड्स, ओके। वाटर का एनॉमलस बिहेवियर है ना, उल्टा बिहेव करता है। तो जब वो वाटर से आइस बनता है तो वो एक्सपांड हो जाता है थोड़ा सा, और एक्सपांड होने की वजह से डेंसिटी कम हो जाती है, ओके। So important doubts यही थे, okay. So Christchurch, if you don't have any doubts, you can leave. Peters, wait.
Yes. So Peters, in your book, there is one example on page number 79 of bimetallic strip. Bimetallic strip का एक example है, वो मुझे डिस्कस करना है. क्या एग्जाम्पल है वो? सी, एक बायमेटालिक स्ट्रिप है ऐसा. बायमेटालिक मतलब दो मेटल का बना हुआ होता है. ठीक है, एक साइड अलग मेटल है, दूसरे साइड अलग मेटल है. ठीक है, दो स्ट्रिप को ज्वाइन किया है. ओके, देन यहाँ पे से वो कांटेक्ट में होता है यहाँ पे. देन देयर इज अ कंट्रोल यूनिट हियर. ओके, अ कंट्रोल यूनिट एंड देयर इज अ पावर सप्लाई हियर. अ पावर सप्लाई. ठीक है, ये बायोमेटालिक स्ट्रिप कहाँ पे होता है? फॉर एग्जांपल आपके गीजर्स में. गीजर में क्या होता है? आपने गीजर ऑन किया, पानी गर्म होने लगा. ठीक है, आफ्टर सम टाइम इफ यू फॉरगेट, इवन इफ यू फॉरगेट टू स्विच ऑफ द गीजर, ऑटोमेटिक वो बंद हो जाता है. जो लेटेस्ट गीजर्स आते हैं वो ऑटोमेटिकली पानी को गर्म करते हैं और बंद हो जाते हैं. ठीक है, तो ऐसा कैसे बंद होते हैं ऑटोमेटिकली? बिकॉज सी, ये बायोमेटालिक स्ट्रिप दो मेटल्स यूज किया इसमें. ठीक है, एक मेटल जो ज्यादा एक्सपांड होता है, एक मेटल जो थोड़ा कम एक्सपांड होता है. ठीक है, तो ये मेटल्स की वजह से क्या होता है, जब ये मेटल एक्सपांड होते हैं तो ये स्ट्रिप बेंड हो जाती है. समझो ये स्ट्रिप अभी सीधी है ना, ये ऐसी बेंड हो जाती है. ओके, इन द टेक्स्ट बुक यू कैन सी द डायग्राम. ये स्ट्रिप बेंड हो जाती है ऐसे हीट होने के बाद. तो समझो आपने गीजर को ऑन किया. ठीक है, योर वाटर टेम्परेचर इंक्रीजेस. समझो आपके पानी का टेम्परेचर पहुंच गया 30 डिग्री सेल्सियस. ओके, और ये लिमिट है. समझो 30 डिग्री सेल्सियस तक पानी पहुंचा आपके लिए. इट इज हॉट इनफ टू टेक बाथ इन दैट टेम्परेचर 30 डिग्री. तो क्या होगा, 30 डिग्री पहुंचने पे धीरे धीरे ये स्ट्रिप बेंड होगी. जब ये स्ट्रिप बेंड हो जाएगी, ये स्ट्रिप ऐसे बेंड हो जाएगी ऐसे, और ये बेंड हो जाएगी तो आप ये देखोगे ये जो एरो बना हुआ है यहाँ पे, इस एरो का जो कांटेक्ट है स्ट्रिप के साथ वो टूट जाएगा. ओके, पहले ये जॉइंट था, कनेक्टेड था, अब ये ब्रेक हो गया. ओके, तो अगर ये कांटेक्ट ब्रेक हो गया तो जो करंट फ्लो हो रहा था यहाँ पे, करंट फ्लो हो रहा था सर्किट में, वो करंट फ्लो ही नहीं होगा. और अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो ये यहाँ पे स्विच है, ये स्विच ऑफ हो जाएगा. ठीक है, तो पहले जब वो कनेक्टेड था तो करंट फ्लो हो रहा था, पानी गर्म होते जा रहा था. जब पानी गर्म हो गया तो ये स्ट्रिप बेंड हो गई, कनेक्शन टूट गया, स्विच ऑफ हो जाएगा, तो वापस पानी गर्म नहीं होगा. ठीक है, अनलेस यू प्रेस द स्विच अगेन. और जब पानी कूल हो जाएगा तो ये स्ट्रिप वापस नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी ऐसे. सो दिस सिस्टम वर्क्स लाइक दिस. सर मैं डाउट है एक. तो सर अगर हम एक गैस को हीट करेंगे तो कितने एक्सपेंड होगा सर? सबसे हाईएस्ट डिग्री पे करेंगे तो कितना एक्सपेंड होगा? कितना एक्सपैंड नहीं है, एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक एक्सपांड होगा और उसके बाद इट विल स्टॉप, मतलब एक्सपांशन रुक जाएगा, आपका हीट वेस्ट होगा. ऐसा कुछ हाई टेम्परेचर का लिमिट नहीं होता. टेम्परेचर तो आप कितना भी करो, आपकी हीट वेस्ट होती जाएगी. ओके, खाली डेंसिटी कम होती जाती है. गैस को एक्सपांड करना मतलब उसकी डेंसिटी कम होती जाती है और जो पार्टिकल्स है उनके बीच में का डिस्टेंस बढ़ते जाता है वैसा. और सर प्लाज्मा क्या होता है सर? उससे प्लाज्मा बन सकता है क्या गैस से? यस, प्लाज्मा एक स्टेट ऑफ मैटर है. सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अलावा एक स्टेट ऑफ मैटर है, हाईली एक्साइटेड. व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर एट हाईली एक्साइटेड स्टेट, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा स्टेट. उसमें तो वो सर एनर्जी. अगर सर हम गर्म करेंगे तो ऐसे प्लाज्मा बन सकता है क्या ग्लास गैस से? यस, गरम मतलब नॉर्मल ऐसे गरम नहीं, बट अंडर सर्टेन कंडीशंस टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को मेंटेन करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल जो सीएफएल बल्ब्स होते हैं, उसमें जो लाइट आती है, दैट इज सीएफएल बल्ब्स. पता है ऐसे ऐसे ट्यूब नियॉन. बल्ब्स, पहले एलईडी के पहले वो मिलते थे. तो हाँ. उन बल्ब्स में जो लाइट आती है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ प्लाज्मा. ओके सर, थैंक यू.
Okay. So we have completed the chapter. That's it for today. Thank you.